आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज़ गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। पार्लियामेंट में माली साल 2021-22 का बजट पेश। बजट में मुल्क की मजमूई तरक्की पर ख़ास तवज्जो मरकूज़। मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन के क़याम की तजवीज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट को तारीखी दिया करार। कहा बजट से इक़्तिसादी तरक्की बनेगी यकीनी। और वादी में कई दिनों की मुसलसल और शदीद ठंड के बाद आज मौसम में आई बेहतरी। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट में आज साल 2021-22 का मीज़ानिया पेश किया गया। बजट पेश करते हुए अपनी तकरीर में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि बजट में मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए तजावीज़ रखी गई हैं। बजट की रूह से इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं होगी, जबकि मेक इन इंडिया पहल को तक़वियत बख्शने के लिए कुछ अशिया पर कस्टम ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़ रखी गई है। बजट में जम्मू कश्मीर में एक नए गैस लाइन प्रोजेक्ट के क़याम और अगले माली बरस के दौरान दिल्ली कटरा हाईवे की तामीर का काम शुरू करने का भी मद रखा गया है। बुजुर्ग शहरियों को राहत देते हुए 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स गोशवारा दाखिल न करने का ऐलान किया गया है। बजट में लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान करते हुए नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत 15,000 से ज़ायद स्कूलों को मुस्तहकम किए जाने की तजवीज़ रखी गई है। 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools and states. Higher education. In Budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement the same. It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation, regulation, and funding. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now, in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के नाम से एक नई स्कीम का भी ऐलान किया गया है, जबकि इसमें कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तस रखने की बात कही गई है। वाज़ेह है कि निर्मला सीतारमन की तरफ से पेश किया जाने वाला ये तीसरा बजट है। इस बार बजट डिजिटल तरीके पर पेश किया गया। Citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However,
while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वजीर ख़जाना ने कहा कि बजट को आत्मनिर्भर नज़रिए के तहत तैयार किया गया है और बजट में तमाम शोबों की यकसां तरक्की के लिए तजावीज़ रखी गई हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने के लिए खुले जहन से बातचीत के लिए तैयार है। Some of the key areas which relate to the Atmanirbhar Bharat package of 1.0. That is the first stage announcement of the Atmanirbhar. I move to the third slide, where the emergency credit liquidity guarantee scheme which was announced, which came to be identified with just the MSMEs, which did not just help the MSMEs, but also help professionals and others. Total amount sanctioned, it was a 3 lakh crore ECGLS, ECLGS, in which 2.05 lakh crores have been sanctioned to about 61 lakh borrowers, who included MSMEs, professionals, and many others who were just not MSMEs, they could be others also. पार्लियामेंट में बजट पेश करने से पहले मरकजी वजीर खजाना ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मजीद खबरों से पहले लेते हैं ये वक्फा। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई। तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट को एक सेहतमंद दस्तावेज करार देते हुए कहा है कि यह बजट मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा करेगा। बजट पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना ने बजट को 6 स्तरों पर तैयार करके एक तारीखी दस्तावेज पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों की खुशहाली का खास ख्याल रखा गया है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है।
इक़्तिसादी माहिरीन ने बजट की सराहना करते हुए इसे एक तारीख साज दस्तावेज करार दिया है। इंडस्ट्री चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फिक्की और नीति आयोग के सरबराहों ने कहा है कि बजट में इक़्तिसादी तरक्की और रोज़गार के वसाइल पैदा करने पर ख़ास तवज्जो दी गई है। कई सियासी लीडरों ने भी बजट की सराहना की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन के क़याम के लिए बजट में तजवीज़ शामिल करने के लिए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस ऐलान के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का भी शुक्रिया अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर से आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में कई वफूद और अफराद मुलाकी हुए। मुशीर ने इन मुख्तलिफ वफूद और अफराद के मसाइल को गौर से सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जायज़ मांगें तरजीही बुनियादों पर हल की जाएंगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 11,858 मरीजों के शफायाब होने के साथ ही मुल्क में कोरोना से शफायाबी की शरह बढ़कर 97% हो गई है। मुल्क में अब तक सामने आए कोरोना के कुल मामलात में से इस वक्त 1.65% मामलात मुस्बत है। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 44 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इनमें से 36 का ताल्लुक कश्मीर डिवीज़न से और 8 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से मुतासरा 83 मरीज सेहतियाब हुए हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने आज नाले ससर पर बने तकिया टैंकर पुल का इफ्तिताह किया। ये पुल तकरीबन 166 लाख रुपए की लागत से मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर तामीर किया गया है। इलाके के लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया की इस कोशिश की काफ़ी सराहना की है। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने पांपोर और खरीब इलाकों में गैर कानूनी तौर चलाए जा रहे 7 कोचिंग सेंटरों को सरबे मोहर कर दिया है। ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इसलिए अमल में लाई गई है क्योंकि इन कोचिंग सेंटरों ने मुतल्लिका महकमे के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। श्रीनगर में आज मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली उन ख़वातीन ने एहतजाज किया जिन्होंने कश्मीरी नौजवानों के साथ शादी की है। ये ख़वातीन हुकूमत की बाज़ाबादकारी पॉलिसी 2010 के तहत कश्मीर आई है। एहतजाज कर रही इन ख़वातीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने उन्हें यकसर नज़रअंदाज किया है और उनकी बाज़ाबादकारी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िला में एक सड़क हादसे में एक 19 साला लड़की समेत 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई जबकि 3 दीगर लोग ज़ख्मी हुए हैं। और अब मौसम। गुज़श्ता दिनों की शदीद ठंड के बाद आज वादी में मौसम में कदरे बेहतरी आई जबकि रात की दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। ताहम वादी के बेशतर इलाकों में नल अभी भी मुंजमद है जिसके नतीजे में लोगों को पानी की सप्लाई के ताल्लुक से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान वादी के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर अबरालूद रहने से लेकर हल्की बर्फबारी की पेश गोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20.7 और रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। दीगर खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।